So hello students, in the previous video we have studied till characteristics of parallels of latitude. Today we'll start with the calculation of distance between two consecutive parallels of latitude. So there's a formula to calculate the distance between two consecutive lines of latitude. The formula is circumference of the earth divided by 360 degrees. Circumference means the perimeter of the circle. And 360 degree, why we will take 360 degree? Because a circle makes an angle of 360 degree. So the circumference of the earth is calculated as 40,077 kilometer, and we will divide it by 360 kilometer. So we will get the answer 111 kilometer. So this is how we will calculate the distance between two parallels of latitude. Understand, students? Now we'll move on to the climatic zones. The zones of the earth are important parallels of latitude. अब आपको बता दूं कि जो अर्थ के जोन्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं. एंड अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स. अर्थ की डिफरेंट जगह डिफरेंट क्लाइमेट पे डिवाइडेड होती है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस रेड वन, दैट इज टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन. इसको टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है. सबसे पहले हम बात करते हैं बीच वाली लाइन की. दिस लाइन इज द इक्वेटर. इसको हम इक्वेटर कहते हैं, राइट. दिस इज द बिगेस्ट लाइन. आपको खुद ही दिख रही होगी. दिस इज द बिगेस्ट लाइन. सो इट इज नोन एज द ग्रेट सर्कल, राइट. एंड द एरिया अबव दिस द इक्वेटर एंड बिलो द इक्वेटर इन बोथ द हेमिस्फीयर इज नोन एज टॉरिड जोन. ठीक है. नाउ विल कम टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस लाइन, दिस बाउंड्री, दिस लाइन इज नोन एज Tropic of Cancer. It lies in the northern hemisphere, right? Now we'll discuss about Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn lies in the southern hemisphere. This line, this boundary is known as Tropic of Capricorn. This is 23.5 degrees south. This is 23.5 degree north. So now we'll study about the zones beyond these lines. These pink zones are known as टेम्परेट जोन्स. ठीक है. पिंक जोन का आधा हिस्सा क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और आधा सदर्न हेमिस्फीयर में. तो इस जोन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं, राइट. टेम्परेट जोन. अब ये जब जोन खत्म होता है तो ये जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? दिस बाउंड्री मीन 66.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज आर्कटिक सर्कल, एंड दिस बाउंड्री 66.5 डिग्री साउथ इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल, राइट. सो Now we'll study about the frigid zones. अब हमारे frigid zones कौन से होते हैं? These blue zones. These entire zone is known as North frigid zone, and this is known as South frigid zone. And these point, the uppermost point is known as 90 degree north, जिसको हम कहते हैं North Pole, and the lower 90 degree south is known as the South Pole. So this is how our earth is divided between different climatic zones and there are different parallels of latitude. अभी हमने जिन parallels of latitude की बात करी, अब हम इनको डिस्कस करेंगे, राइट. इन सारी लाइंस को, इक्वेटर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, आर्कटिक सर्कल को, अंटार्कटिक सर्कल को, नॉर्थ पोल को एंड साउथ पोल को, वन बाय वन वी विल डिस्कस इट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So the main latitudes. The main latitudes, first one is the 0 degree equator. आपको मैंने अभी बताया longest parallel of latitude, boundary between the northern and the southern hemisphere. Boundary between the northern and the southern hemisphere है and a great circle. अब आपको दिखा दूँ कि ये boundary कैसे है. देखिए, equator boundary है. ये पूरा हिस्सा आपका, ये पूरा हिस्सा northern hemisphere है, ये पूरा southern है. तो ये बीच की boundary है, दो हिस्से में अर्थ को बांट रहा है, right? This is the boundary. चलिए नेक्स्ट, 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. अब आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ की एक बार लाइन में फिर से दिखाना चाहूंगी. दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस एंटायर लाइन, राइट. नॉर्थवर्ड लिमिट ऑफ द वर्टिकल सोलर रेडिएशन. अब आपको बता दूं कि वर्टिकल सोलर रेडिएशन होता क्या है. एज यू ऑल वेरी वेल नो कि इक्वेटर जो होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है, राइट.
सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है और इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से पे और नीचे वाले हिस्से पे, यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा ये रेड जोन, नीचे वाला हिस्सा ये रेड जोन, तो ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द नॉर्थवर्ड लिमिट ऑफ द टॉरिड जोन। नॉर्थवर्ड लिमिट है कि नहीं है, राइट, दिस इज द नॉर्थवर्ड लिमिट ऑफ द टॉरिड जोन। नॉर्थवर्ड बाउंड्री बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन मैंने आपको बताया था पिंक जोन होता है, ये देखिए बाउंड्री बिटवीन द टेम्परेट जोन एंड द टॉरिड जोन। ये आपका दिख रहा है आपको, ये टॉरिड जोन है, ये क्या है, टेम्परेट जोन है। इसके बीच की बाउंड्री क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिख रहा है, वेरी इजी। स्मॉल सर्कल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन होती है, तो दिस इज अ स्मॉल सर्कल। एक्सपीरियंसेस समर सोल्स्टाइस ऑन 21 जून। तो आपको मैं ये बता दूं कि 21 जून में क्या होता है कि जो अर्थ की पोजीशन होती है सन की तरफ पूरी टिल्टेड होती है, राइट। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, समर सोल्स्टाइस, और ये कब होता है, 21 जून को होता है, राइट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज Tropic of Capricorn. 23.5 degrees south, that is Tropic of Capricorn. So this is the southward limit of the vertical solar radiation. अब सन की रेडिएशन यहाँ पर भी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी पड़ती है और यहाँ पर भी पड़ती है। तो ये कौन सी लिमिट है, साउथवर्ड, ये साउथ में है ना ये हिस्सा, ये देखिए आप, हम ये बीच का है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो दिस लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द साउथवर्ड लिमिट ऑफ द वर्टिकल सोलर रेडिएशन। सन की रेज इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से, जैसे कि ये दो एरो बनी वैसे ही साउथवर्ड लिमिट हो गई, राइट। सो मूविंग फर्दर, boundary between the torrid zone and the temperate zone in the southern hemisphere. This is also the boundary between the torrid zone and the temperate zone in the southern hemisphere. देखिए बाउंड्री है कि नहीं, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द टॉरिड जोन, टॉरिड जोन हमारा ये हो गया, और टेम्परेट जोन, तो इन दोनों के बीच की ये बाउंड्री हो गया है, हेंस इट इज नोन एज द बाउंड्री। अंडरस्टैंड। स्मॉल सर्कल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, बाकी सारे स्मॉल सर्कल हैं, राइट। एक्सपीरियंसेस समर सोल्स्टाइस ऑन 22 दिसंबर। अब क्या होता है, 22 दिसंबर को यहाँ पे सोल्स्टाइस एक्सपीरियंस किया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है, अर्थ की पोजीशन जो होती है सन की तरफ टिल्टेड होती है, राइट। नाउ we'll move on to 66.5 degree, that is Arctic circle, right। मैं आपको एक बार दिखा दूं, right, this is 66.5 degree north, that is Arctic circle, right, and this is the northward limit of the temperate zone। temperate zone पिंक वाला जोन है, इसकी northward limit है कि नहीं, ये बाउंड्री नॉर्थ में है, तो ये northward limit हो गया, right, and it is the boundary between the frigid zone and the temperate zone। ठीक है, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन के बीच की ये बाउंड्री है कि नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो द सदर्न लिमिट ऑफ द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन के नीचे आता है तो सदर्न लिमिट हो गई कि नहीं हो गई, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमने पढ़ लिया कि नॉर्थवर्ड लिमिट ऑफ द टेम्परेट जोन है ये, बाउंड्री बिटवीन द टेम्परेट एंड द फ्रिजिड जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथवर्ड लिमिट ऑफ द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, इट इज अ स्मॉल सर्कल, duration of daylight can be 24 hours or 0 hours beyond these limit depending upon the season। अब आपको बता दूं कि इस पोजीशन, इस लाइन के बाद, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन के बाद, लाइन में आपको शो कर देती हूँ एक बार फिर से, इस लाइन के बाद, बियॉन्ड दिस लाइन, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद मतलब ये ब्लू जोन्स पे या तो 24 घंटे दिन रहते हैं या 24 घंटे रात होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, राइट। अब आ जाते हैं 66.5 डिग्री साउथ, दैट इज अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल नीचे वाला है, मैं आपको एक बार फिर से शो कर देती हूँ, दिस वन, अंटार्कटिक सर्कल, राइट, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, एंड
दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द फ्रिजिड जोन एंड द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन ये पिंक जोन एंड ब्लू जोन, इसके बीच की बाउंड्री है ये लाइन. तो दिस इज द बाउंड्री. इट इज द साउथवर्ड लिमिट ऑफ द टेम्परेट जोन. ये टेम्परेट जोन की साउथवर्ड लिमिट है, ये नॉर्थ लिमिट हो गई, ये साउथवर्ड लिमिट हो गई. एंड दिस इज द नदर्न लिमिट ऑफ द फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन का नदर्न सदर्न पार्ट ये हो गया एंड नदर्न पार्ट ये हो गया, राइट. इट इज ऑल्सो अ स्मॉल सर्कल. तो जैसा कि हमने पढ़ लिया कि साउथवर्ड लिमिट ऑफ द टेम्परेट जोन है ये, बाउंड्री बिटवीन द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन, नॉर्थवर्ड लिमिट ऑफ द साउथ फ्रिजिड जोन. इट इज अ स्मॉल सर्कल. ड्यूरेशन ऑफ डेलाइट कैन बी 24 आवर्स और 0 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन बियॉन्ड दिस लिमिट. अब इस लिमिट के बाद या तो 24 घंटे दिन रहेंगे या रात रहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर में भी, जैसा कि सीजन होगा उसके हिसाब से. Now we'll come to 90 degree north, that is the north pole. मैं आपको दिखा दूं. This point, this is the सब ये एक डॉट की तरह डिपिक्ट होता है, या यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, ये डॉट की तरह डिपिक्ट किया जाता है. ठीक है, तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है. दो ही स्मॉलेस्ट होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसमें से एक ये है. ठीक है, यहाँ पर आपको बता दो कि दिस इज द नदर्न लिमिट ऑफ द नॉर्थ फ्रिजिड जोन. नॉर्थ फ्रिजिड, ये हमारा फ्रिजिड जोन की नदर्न लिमिट है कि नहीं, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, तो ये नदर्न लिमिट हो गई, राइट. एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स डे ऑन 22 जून एंड 24 आवर्स नाइट ऑन 22 दिसंबर. यहाँ पे क्या होता है, 22 जून को 24 घंटे दिन होता है और 22 दिसंबर को 24 घंटे यहाँ पर रात रहती है. दिस इज द फिनोमेना एक्सपीरियंस्ड इन दिस जोन. नाउ विल कम टू द साउथ पोल, राइट. हम आ जाते हैं साउथ पोल पे. सो साउथ पोल इज द 90 डिग्री साउथ. ठीक है, नीचे. वन ऑफ द टू स्मॉलेस्ट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिपिक्टेड एज अ डॉट. ये डॉट की तरह डिपिक्ट किया जाता है. साउथवर्ड लिमिट ऑफ द नॉर्थ फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन के सबसे नीचे है, तो ये साउथवर्ड लिमिट हो गई. यहाँ पर एकदम ऑपोजिट कर दीजिए कि 22 दिसंबर को 24 घंटे दिन होता है एंड 21 जून को यहाँ पे क्या होता है, 24 घंटे रात होती है, राइट. आई विल शो यू द साउथ पोल वंस अगेन. You can see this is the south pole. This is depicted as a dot, smallest parallel of latitude. और ये देखिए ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे का साउथ, तो ये southern limit of the frigid zone, right? Now we have completed till here, and in the next topic we will start with the concept of longitudes. Thank you class.